السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے میری ماں اور بہنوں، آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آنے والوں کے قدم قدم پہ نیکیاں لکھ دے، سننے والوں کو، کہنے والوں کو اس سے پہلے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ بڑی خوبی کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ بھی گزر گیا۔ بس اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں قبول فرما، ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرما۔ اللہ یقیناً بولنے میں، سننے میں، کہنے میں یقیناً بہت ساری لغزشیں ہوئی ہوں گی، اللہ ایک ایک لفظ کو تو معاف فرما، اس کہنے کو، اس سننے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری آخرت کا توشہ بنا، آمین ثم آمین۔ آج 29واں اور 30واں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ کل آپ جانتے ہیں کل کا دن بڑا مصروف دن رہے گا ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہی ہم ختم کر لیتے ہیں قرآن کو۔ اگر آپ سے کہا جائے اوپر مت چڑھو تو مت چڑھنا، جگہ فل ہو جائے گی تو والنٹیئرز ٹھہرے رہیں گے، جو جوان ہوں گے ان کو سب سے اوپر بھیج دیں گے، جو اس سے تھوڑا کم جوان ہوں گے ان کو سیکنڈ فلور پہ جگہ ملے گی، جو ضعیف ہیں ان کو سب سے نیچے ملے گی۔ اب یہ آپ طے کرو آپ کون سے فلور پہ جانا چاہتے ہیں، آپ ہیں کیا؟ آپ جوان ہیں کیا بہت زیادہ جوان ہیں؟ یہ لو، کیا میں جوان نہیں ہوں؟ نشاط کو میری کرسی سب سے اوپر رکھ دو، میں سب سے زیادہ جوان بننا چاہتی ہوں، سب سے اوپر رکھ دو میری کرسی تو، یعنی یہ آپ کا فلور طے کرے گا آپ کس درجات میں ہے، درجات کتنے بلند ہے، آپ کون سے فلور پہ، کیونکہ زیادہ جگہ ہے ہی نہیں، کون سے فلور پہ ہے۔ ہاں الحمدللہ آپ کے ایک ایک روپیے کا شکریہ، آپ نے بڑی ہماری مدد کی، بہترین سے بہترین انتظام کل انشاءاللہ ہم لوگ آپ کا کریں گے۔ اللہ جو دیا اس کو اور عطا فرما، جو نہیں دیا اللہ اس کو بھی عطا فرما، اس کو بھی عطا فرما۔ آپ کا ایک ایک روپیہ ہمارے لیے قدردان ہے، شکریہ ہر قدم پہ ساتھ دینے کے لیے۔ ہماری کوشش ہے کل بہت اچھا انتظام ہوگا، بہت سکون کے ساتھ ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے جھولی بھر بھر کے، دامن بھر بھر کے اللہ کی رحمتیں مانگیں گے، شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، ہم کو بھی کچھ مل جائے، ہماری بھی دنیا سنور جائے، ہماری بھی آخرت سنور جائے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سے قبول فرما۔ آج 29واں اور 30واں پارہ اتنا زیادہ دل دہلا دینے والا ہے، اگر آج کی تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی، یقیناً آج کے بعد پوری رات بے فکری کے ساتھ آپ سو نہیں پائیں گے۔ آخر اللہ تعالی قرآن میں اتنا جہنم کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ آج کی پوری تفسیر سے میں نے صرف ایک ہی موضوع ڈھونڈ کے لائے ہیں، جہنم، کیونکہ پوری تفسیر میں ہم نے یہ نہیں سنا ہے۔ اور 29واں اور 30ویں پارے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے۔
आओ सबसे पहले मैं आपको बताऊं जहन्नम क्या है, कैसी है, किन लोगों के लिए है और इससे बचा कैसे जा सकता है। आज का पूरा टॉपिक हमारा इंशाअल्लाह यही रहेगा। दूसरे पॉइंट्स भी हैं लेकिन सबसे मेन हमारा टॉपिक होगा जहन्नम 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 जहन्नम। क्यों, कैसे, क्या, किसके लिए, ये समझना बहुत जरूरी है मेरी बहनों। कहीं अल्लाह का डर हमारे दिलों से निकल गया, गुनाहों की लज्जत हमारे दिलों में पैदा हो गई, आखिरत से हम गाफिल हो गए, खबर को हम भूल गए, फिर इससे बदतरीन जिंदगी हमारी नहीं हो सकती। आओ क्या है ये जहन्नम, इसको समझ तो ले। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ये वही आग है जिसको तुम झुटलाते थे। क़यामत में जहन्नम की तरफ दिखा दिखा के रब्बुल आलमीन कहेगा देखो देखो, गौर से देखो, ये वही जहन्नम है जिसको तुम झुटलाते थे। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69% ज्यादा है। 70 हिस्सा आग का था, एक हिस्सा अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। 69वां हिस्सा अल्लाह ताला ने अपने पास रखा। अगर जलाना ही था, दुनिया की आग काफी थी हमारे लिए, इसको 70 दर्जे तक बढ़ाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जरा देखो अल्लाह ताला ने 69 दर्जा अपने पास रखा है जहन्नम की आग के लिए। अल्लाह कहता है इस 70 दर्जा ज्यादा आग में दाखिल होने वाले लोग, इनके लिबास भी आग के होंगे, इनके बिस्तर भी आग के होंगे, इनकी छत भी आग की होगी, इनके लिबास भी आग के होंगे। जिन जंजीरों से इनको बांधा जाएगा वो वजनी जंजीरें, वो भी आग की बनी होंगी। एक नहीं, कई जगह अल्लाह ताला ये इरशाद करता है जहन्नम की हर चीज आग ही की बनी हुई है। आग की एक भाप नहीं बर्दाश्त होती है। रोटी बनाओ, गलती से भाप लग जाए, कई दिन तक निशान बाकी रहता है। ये दुनिया की आग नहीं है, ये दुनिया की आग से भी 69 दर्जे ज्यादा है बुरा अल्लाह ताला। आओ देखते हैं ये कैसी आग है। मेरी बहनों, आग में पैदा होने वाले जहरीले सांप इतने बड़े हैं, इनका मोटा अगर देखना चाहती हो कितने मोटे हैं, ये एक ऊंट के बराबर मोटे हैं। इतने मोटे नहीं, ना इतने मोटे, इनका कद ऊंटों की तरह मोटा है, ऊंटों की तरह। और बताओ बिच्छू, आग के जहरीले बिच्छू, इनका कद एक खच्चर के बराबर है। खच्चर एक जानवर है, गधा के जैसा दिखता है। सोचो, बिच्छू खच्चर के बराबर, और जहन्नम सिर्फ जहरीले खाने पीने का गढ़ है। और जहरीले खौलता बदबूदार जहरीला पीप, इसके अलावा जहन्नम में कुछ नहीं है। आग है, जहरीले सांप है, जहरीले बिच्छू है और बदबूदार खून और पीप है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐ मुसलमानों, कुरान चीख के कहता है फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैंने तुमको जहन्नम की दहकती हुई आग से डरा दिया। अब तुम पे है, तुम कितना डरते हो। एक बार अगर मौत की बेहोशी
होशी तारी हो गई, एक बार मौत की सकरात में चले गए, एक बार मौत के फरिश्ते को देख लिए, एक बार तौबा का दरवाजा बंद हो गया, फिर आगे की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है, सिर्फ और सिर्फ जहरीले सांप और बिच्छू हैं। आओ देख लो। वो तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले, मौत की बेहोशी तारी होने से पहले, आओ इस बात को समझ ले। आखिर जहन्नम क्या है जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में करता है और कहता है बचो बचो बचो, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ ये जहन्नम की आग से। क्या है ये जहन्नम की आग? कुरान मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बातें बयान करता है जहन्नम के बारे में। आओ मैं उसकी तफसील आपके सामने बयान करती हूँ, जरा सुनते जाओ आयतें क्या कहती हैं, इसके बाद हम हदीसें सुनेंगे। जैसे ही काफिर जहन्नम को देखेंगे, अल्लाह कहता है इनके चेहरे इतने काले, इतने सियाह हो जाएंगे देखते ही। अभी जहन्नम में डाले भी नहीं गए, इतनी टेंशन, और जहन्नम की दूर से एक भाप चेहरे के सारे गोश्त को जला डालेगी और पूरे जबड़ों को बाहर खींच के निकालेगी। ना, ये चेहरे का ना बड़ा जिक्र है कुरान के अंदर जहन्नम के साथ, क्योंकि इंसान को अपना चेहरा, अपनी नाक बड़ी पसंद होती है ना, बड़ी पसंद होती है। अल्लाह कहता है पहली चीज जो जला के राख करेगी जहन्नम, वो तेरा चेहरा है, जिसको तू लाखों के हजारों के क्रीम लगा लगा के सजा के संवार के रखा करता था। आज तू देख ले कितने काले, कितने सियाह, इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। जहन्नम न जिंदा छोड़ती है न मौत देती है वो अल्लाह ताला। मौत भी नहीं है जहन्नम के अंदर। दुनिया में बात पे मौत आती, मांगेंगे, फरियाद करेंगे जहन्नमी, अल्लाह मौत मौत दे। आखिरी इंतजार होगा इब्लीस को और इब्लीस के फॉलोअर्स को, बस एक बार मौत आ जाए जहन्नम के अंदर, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जब सारे जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में जाएंगे, मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा, एक बकरे की शक्ल में लाया जाएगा, और आखिरी पुल सिरात पर से गुजरने के बाद मौत को भी ज़बाह किया जाएगा। मौत खत्म। पुकार के फरिश्ता कहेगा जन्नत वालों खुशखबरी है तुम्हारे लिए, हमेशा की जन्नत तुम्हारी। जहन्नम वाले लानत हो तुम पर, हमेशा की जहन्नम तुम्हारी। ना जन्नत में मौत है ना जहन्नम में मौत है, मौत को तो ज़बाह कर दिया गया, मौत को ज़बाह कर दिया गया। इसीलिए अल्लाह ताला जहन्नम का जिक्र करता है तो कहता है ना बाकी छोड़ती है, ना मौत देती है, ना जीने देती है ये आग, ना मरने देती है ये आग। अल्लाहु अकबर। और बताओ, अल्लाह कहता है कुरान में जहन्नम में इतना ज्यादा शोर होगा, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। दुनिया में भी ना घर में आवाज ज्यादा नहीं रखना, आहिस्ता बात करो, सुकून के साथ रहो। हो सकता है बाजू वाला कोई बीमार हो सकता है बाजू कोई बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हो, पढ़ रहे हो बच्चे, हो सकता है कोई नमाज में मसरूफ हो, जोर जोर से चीखते रहते हैं। ये शोर, ये जोर जोर की आवाजें, ये तो जहन्नम का हिस्सा है। इतना शोर होगा जहन्नम में, इतना शोर होगा, जिस्मानी अजाब तो है ही है, अल्लाह रूहानी
عذاب بھی دے رہا ہے. دیکھ لو, کوئی ایک بات کرتا ہے تو برداشت نہیں ہوتی ہے, ایک بات کسی کی برداشت نہیں ہوتی ہے. ایک بچہ رویا, سارے لوگوں کا سر میں درد شروع ہو جاتا, رونے کی آواز برداشت نہیں ہوتی ہے. جہنم میں ہزاروں سال تک کوئی خاموشی نہیں, کوئی سکون نہیں. اتنا شور بولو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ روح بڑی تکلیف میں روح ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما, ہے نا. 1000 سال تک کھانے کو مانگیں گے جہنمی. بڑی بھوک لگی ہے. 1000 سال کے بعد اللہ کہتا ہے ایسا زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا, چاروں طرف سے کاٹے, انتہائی بدبودار, انتہائی کڑوا. اور جب جہنمی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ زقوم کے درخت کو نگلنا چاہے گا, یہ پھل کو نگلنا چاہے گا, گلے میں اٹک جائے گا. مزیدار افطاری بنا کے کھانے والوں آؤ سن لو, کہیں زقوم کا درخت تو ہمارا نصیب نہیں ہے. آگے بتاؤں گی کس کے لیے ہے یہ زقوم کا درخت. نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے, بیچ حلق میں یہ زقوم اٹک کے رہ جائے گا. 1000 سال لگیں گے پانی 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 مانگتے 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 مانگتے. 1000 سال کے بعد ان کے ہاتھ میں پانی دیا جائے گا. کون سا پانی؟ قرآن کہتا ہے اتنا گرم, اتنا کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا زقوم کو اندر ڈھکیلنے کے لیے. جب یہ پانی قریب لایا جائے گا, اس کی بھاپ سے, صرف اس کی بھاپ سے چہرے کی, سر کی کھال نکل کے پیروں میں گر رہی ہوگی. یہ کھال سب سے زیادہ سخت ہے, یہ سر کی کھال نکل کے پیروں میں گر رہی ہے گرم پانی کی بھاپ سے. اور جب جہنمی پیے گا وہ پانی, جہاں جہاں سے وہ پانی گزرے گا نا, اتنی چیزوں کو کاٹ کاٹ کے اتڑیوں کو پاخانے کے راستے باہر پھینک رہا ہوگا. یا اللہ, تصور کر سکتے ہو وہ بھیانک منظر؟ 1000 سال کے بعد کھانے کو دیا جا رہا ہے, 1000 سال کے بعد پانی دیا جا رہا ہے. یا رب العالمین, ایسا پانی, ایسا کھانا, اللہ اکبر. اور بتاؤ, کچھ جہنمیوں کے نا ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے, ان کو ایسا آگ کا عذاب دیا جائے گا برا. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے جن چہروں پہ بڑا ناز تھا, بڑا گھمنڈ تھا, اپنی سیدھی ناک پہ, اپنی بڑی بڑی آنکھوں پہ, اپنی گوری رنگت پہ اتنا گھمنڈ کہ یہ چہرہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا تھا. سب سے پہلے چہرے جھلسائیں گے برا اللہ تعالیٰ. اور بتاؤں, کچھ جہنمیوں کی گردن میں توق ڈالے جائیں گے, کچھ جہنمیوں کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی. تصور کرو جہنم کا وہ بھیانک منظر, گردن میں توق ہیں, پیروں میں زنجیریں ہیں, اور جہنم کا ہر مٹیریل آگ سے بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم جہنم کو تصور بھی کرنا چاہیں, اتنا خوفزدہ یہ منظر ہے, خوفزدہ منظر ہے. احادیث کیا کہتی ہے جہنم کے بارے میں ذرا سنو. جب تک جہنم کا خوف ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گا نا بہنوں, ہم گناہ سے توبہ نہیں کر سکتے. ہر بات قرآن کی میٹھی میٹھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. قرآن ڈرائے گا بھی, قرآن ہیبت طاری کرے گا, اور قرآن خوشخبری بھی دے گا.
गुनाह करने से पहले एक बार तसव्वुर तो करो, जब अल्लाह ताला ऐसी जहन्नम में फेंकेगा जहां पे गर्दन में भी लोहे की बेड़ियां, पैरों में भी लोहे की जंजीरें, खाने को जख़ूम, पीने को खौलता हुआ पानी, ऐ रब क्या मैं इसको बर्दाश्त कर पाऊंगी? अगर कर सकते हो यकीनन शौक से गुनाह करो, नहीं तो आओ आज ही गुनाहों से हम तौबा कर ले। क्या है ये जहन्नम? ये सिर्फ एक कैद खाना, एक जेल नहीं है, ये तो हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता हुआ अजाब है, बढ़ता हुआ अजाब है। आओ हदीसें सुन लो, जहन्नम क्या है? गुनाह करने से पहले दिल कांपेगा, दिल तड़पेगा, ऐ रब अगर मेरे लिए जहन्नम हुई तो क्या करूंगा मैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक पत्थर अगर जहन्नम में फेंको, जहन्नम का गहरा गड़ा इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, 70 साल लग जाते हैं जहन्नम की तह में पहुंचने के लिए। बाज़ रिवायतों के हिसाब से तो 100 साल का जिक्र है। ऐ इंसान, ऐ काफिर, अल्लाह के नाफरमान, इतने गहरे गड्ढे में जब तू डाला जाएगा, पत्थर गिरने के लिए जिसको 100 साल लगते हो, 70 साल लगते हो, सोचो हमारी क्या हालत होगी। इतना गहरा गड्ढा, इतना गहरा गड्ढा, इंसान निकल नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा। बताओ, जहन्नम की जो एक दीवार है और दूसरी दीवार, गौर से सुनो ना, आज से पहले आपने जहन्नम के बारे में ये बातें सुनी होंगी ना, शायद आज के बाद कभी मौका मिले ना मिले। गुनाहों का डर पैदा होने के लिए गुनाहों के अंजाम को याद करना सीख लो। एक जहन्नम कितनी बड़ी है, एक जहन्नम कैसी है, एक जहन्नम की एक दीवार इधर है, दूसरी दीवार तक पहुंचने के लिए जहन्नम की एक आदमी घोड़े पे सवार होके तेज रफ्तार दौड़ता रहे 40 साल तक दौड़ता रहे, 40 साल के बाद उसको दूसरी दीवार मिलेगी। जहन्नम की एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच का फासला 40 साल की मसाफत है, 40 साल लग जाते हैं पहुंचते। या अल्लाह, एक एक जहन्नम ऐसी है, एक एक जहन्नम ऐसी है। बताओ, जहन्नम को ना मैदान हश्र में अल्लाह लाएगा, क़यामत का मैदान होगा, जन्नत भी होगी, जहन्नम भी होगी, जन्नत वाले भी होंगे, जहन्नम वाले भी होंगे। बात चल रही है जहन्नम की, आओ बता दूं, जहन्नम एक जहन्नम कितनी बड़ी है, जिसको लाया जाएगा घसीट के मैदान हश्र में। 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते उसको ला रहे होंगे ढकेल के, 4 बिलियन 90 करोड़ फरिश्ते। ये इंसान नहीं, जिन्नात भी नहीं, ये फरिश्ते हैं। इनकी ताकत इंसानों से ज्यादा, फरिश्तों से ज्यादा। जहन्नम को जब ढकेल के ला रहे होंगे, इतना आवाज कर रही होगी, इतना चीख रही होगी, इतना चिंगाड़ रही होगी, इसकी जहन्नम की चीखों से पूरा मैदान हश्र कांप रहा होगा। तसव्वुर करो, एक भूखा शेर हमारे सामने डाल दिया जाए, क्या वो मंजर हम तसव्वुर कर सकते हैं? हम तो भूखे कुत्ते के सामने नहीं जा सकते। एक भूखा शेर बर्दाश्त नहीं होगा, उसकी हैबत, उसकी खौफ। ये जहन्नम भूखी है। 4 अरब
90 करोड़ फरिश्ते इसको ढकेल के मैदान हश्र की तरफ ला रहे होंगे। या अल्लाह, वो जहन्नम का कितना खौफनाक मंजर होगा। या रब हमें इससे हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा, है ना। जहन्नमी का हल्का असाब भी इतना है जहन्नम का, जैसे किसी एक इंसान को आग के 2 जूते अल्लाह पहनाएगा, उसकी इतनी गर्मी होगी आग के जूते की, उसका दिमाग इतना हांडी में रखे हुए पानी की तरह पक रहा होगा। और ये सबसे हल्का असाब अबू तालिब के लिए है। अबू तालिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, सबसे हल्का असाब है। दीन के लिए जिसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, जो अल्लाह के रसूल के लिए उठ खड़े हुए, सबसे हल्का अजाब इनके लिए है। हमारे तो अजाब का पूछो ही मत, अल्लाह ना करे, हम तो दीन के लिए खड़े ही नहीं होते हैं। 1000-2000 रुपए चंदा मांगो मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, इज्तिमा के लिए, जान जाती है हमारी। दीन के लिए जायदादें लुटाने वाले हम कब से बनने लगे, हम कब से बनने लगे। अबू तालिब जिनकी जिंदगी ईमान लाए बगैर दीन के लिए खड़े हुए थे, सबसे हल्का अजाब ये है, 2 जूतियां पहनाई जाएंगी इनको, जिससे इनका दिमाग तक खोल रहा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर से सुनते जाओ जहन्नमी को और तसव्वुर करते जाओ। जहन्नमी का एक दांत सिर्फ उहुद पहाड़ के बराबर होगा। क्या तसव्वुर कर सकते? सारी सही हदीसें हैं। जब जहन्नम इतनी बड़ी, एक दीवार से दूसरी दीवार तक पहुंचने के लिए 40 साल लग जाए, वो भी तेज रफ्तार, एक दांत जहन्नमी का उहुद पहाड़ के बराबर है। पहाड़ है उहुद, देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने, और जो नहीं देखा तसव्वुर कर लो, पहाड़ के बराबर दांत है, पहाड़ के बराबर। और बताओ जहन्नमी इतना मोटा, एक कंधे से दूसरे कंधे का फासला, कितनी बारीकी से हदीसों में है, देखो ना। ये कंधा किधर, ये कंधा किधर, एक कंधे से दूसरे कंधे का फासला अगर कोई तय करना चाहे चल के, 3 दिन लग जाएंगे उसको। कितने दिन? एक कंधे से शुरू किया, दूसरे कंधे तक पहुंचने के लिए, अल्लाहु अकबर, 3 दिन का फासला है, 3 दिन के लिए। आगे बताओ, तिरमिजी की जो रिवायत है, मारने के लिए जो कोड़ा है ना जहन्नमी को, तसव्वुर करना गुनाह से पहले, हर गुनाह से पहले जहन्नम का अजाब याद कर लो। एक एक कोड़ा इतना भारी है, इतना भारी है, अगर उसको जमीन पे रख दिया जाए कोड़े को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम दुनिया के जिन्नात और इंसान मिल के भी जमीन से वो कोड़े को उठा नहीं सकते। क्या हालत होती होगी जब इतने वजनी कोड़ों से जहन्नमी को मारा जाता होगा। जमीन पे पड़ा है कोना, जिन्नात और इंसान मिलके जमीन पे पड़े हुए कोने को उठा नहीं सकते। अल्लाहु अकबर ना। क्या अंदाजा लगा सकते हो बेनमाजियों, अंदाजा लगा सकते हो सूद खाने वालों, अंदाजा लगा सकते हो बेहयाई करने वालों, जब ऐसे कोड़े से एक एक मार पड़ती होगी जहन्नमी को, क्या हालत होती होगी जहन्नमी को। पहले ही बता दी, मौत भी नहीं है, अतड़ियां कट के बाहर आ रही है, मौत नहीं है, कोई मौत नहीं है जहन्नम के अंदर, कोई मौत नहीं है। अल्लाहु अकबर। बताऊं, जहन्नम का एक सांप ऊंट के जितना मोटा है, एक सांप, याद रखना, आगे की हदीस भी याद रखना।
ایک بار اگر یہ زہریلا سانپ کسی جہنمی کو ڈستا ہے 40 سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس ہوتی ہے. لا اللہ، 40 سال تک اس کے زہر کی جلن محسوس ہوتی ہے. اور بچھو کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں حدیث میں. بچھو بھی جہنم کا ڈسے گا، کافر مشرک جہنمی 40 سال تک اس کے زہر کی جلن کو محسوس کرے گا. لا اللہ، چوٹی کاٹتی، ایک مچھر کاٹتا برداشت نہیں ہوتا ہے میرے رب. ایک مچھر کا کاٹا ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. کچھوا اگربتی سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا جلانے کی عادت پڑ گئی ہے. قبر میں بھی سانپ ایسے ہی ہیں، جہنم کے سانپ بھی ایسے ہی ہیں. یہ سانپ اور انسان کا کھیل تو قبر سے ہی شروع ہے، یاد رکھو. قبر کے عذاب کے بارے میں بھی صحیح حدیث ہے. قبر میں جب میت کو ڈالا جاتا ہے جہنمی کو 99 اسحے اس پر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. وہ اس کے گوشت کو کاٹتے ہیں، ڈستے ہیں. جب ان کا زہر ختم ہوتا ہے پھر 99، پھر یہ کاٹتے ہیں، پھر ان کا زہر ختم ہوتا ہے، پھر 99. قیامت تک ہر دن 99 اسحے پر چھوڑے جاتے ہیں. آج گناہ بڑا مزہ دے رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے. کیا منہ لے کے جائیں گے ہم قبر میں؟ تصور کرو 99 اسحے جسم سے لپٹے ہوئے کیسے نوچ رہے ہوں گے، کیسے ڈس رہے ہوں گے. اللہ، ایک چھپکلی کو دیکھو تو جام جاتی ہے، ایک کاکروچ کو دیکھو تو دم نکلتا ہے، ایک مچھر نہیں برداشت ہوتا ہے. قبر کے سانپ بچھو کیسے برداشت کرو گے میری بہنوں، کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرما. آؤ بتاؤں، جہنمی کی کھال ہے نا، یہ جسم کی کھال اتنی موٹی ظاہر ہے ایک دانت پہاڑ کے برابر، ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ 3 دن کا. کھال 42 ہاتھ موٹی ہے، 42 ہاتھ لمبی نہیں، موٹی. اگر اس کو انگلش میں کریں گے ہم حساب 63 فٹ موٹی ہے. 63 فٹ موٹی. یہ پوری بلڈنگ بھی 63 فٹ نہیں ہے. اتنی موٹی جہنم کی کھال ہوگی، جہنمی کی. اللہ اکبر. اس کے باوجود چمڑا جلتا رہے گا. 63% موٹی کھال ہے، اس کے باوجود چمڑا جلتا رہے گا. اللہ نے بڑا بھیانک انداز قرآن میں بتا دیا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم. جب ان کی کھالیں جلیں گی ہم نئی کھال ان پہ چڑھاتے رہیں گے اور عذاب دیتے رہیں گے. چمڑا جل کے عذاب ختم بھی تو نہیں ہوتا ہے. کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھال جل کے ختم ہوگی. 63 فٹ موٹی کھاٹ ہے، 63 فٹ موٹی کھال ہے، وہ بھی جلے گی. اللہ پھر سے نئی کھال دے گا. اس قدر آنسو نکلیں گے نا جہنمی کے. ذرا دیکھو نا، آج ایک آنسو بہا لے میری بہن اللہ کی یاد میں، اللہ قبر بھی آسان کرے گا، حشر بھی آسان کرے گا. ہم نے سنا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ نے اس کے لیے عرش کا سایہ مقرر کیا ہے، عرش کے سائے میں اس کے لیے جگہ ہوگی. یاد ہے نا؟ رو لو نا تنہائی میں یاد کر کے، محفل میں نہیں، تنہائی میں. جہنمی اتنا روئے گا اپنے گناہ یاد کر کے اتنے آنسو اس کی آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں گی. لیکن یہ آنسو
بے وقت کے آنسو ہے، اب کیوں کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آنسو ختم ہو جائیں گے، پانی کے خون کے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد پیپ کے آنسو ہوں گے، لیکن پانی کے ہوں، خون کے ہوں، پیپ کے ہوں، یہی کا آنسو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بھی آنسو کا. ایک حدیث سن لو، نیند اڑ جائے گی. مزیدار کھانے کھانے والوں، ٹھنڈے ٹھنڈے شربت پینے والوں، آؤ میں تم کو جہنم کے بارے میں ایک حدیث سناؤں. اللہ کی قسم، حرام نوالا اٹھاؤ گے، بڈی کا، جھوٹ کا، یتیم کے مال کا، آپ کو یہ حدیث یاد آئے گی، آواز کانوں میں گونجے گی. سن لو، مزیدار کھانے کھانے والوں سن لو، جہنم کا کھانا کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر جہنمیوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کا ایک ٹکڑا کھانا اگر دنیا کی طرف پھینک دیا جائے، پورے جانداروں کا کھانا خراب ہو جائے گا، پوری دنیا کھانا نہیں کھا سکے گی. دنیا میں جتنے جانور، جتنے انسان ہیں، سب کا کھانا خراب ہو جائے گا اگر جہنمیوں کا ایک کھانے کا ٹکڑا زمین کی طرف گرا دیا جائے. کیسے کھائیں گے یہ بدبودار کھانا؟ کیسے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وہ جو گرم کھولتا ہوا پانی کا ذکر ہے نا قرآن کے اندر، صرف ایک ڈول، 1 لیٹر پانی اگر زمین کی طرف بہا دے اللہ تعالی، پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی اس سے. دنیا میں ہم بیٹھ نہیں پائیں گے اس کی بدبو سے. پوری دنیا سڑ جائے گی اگر اس کا ایک ڈول پانی، 1 لیٹر جتنا پانی اگر زمین پہ بہا دیا جائے. ایک ٹکڑا کھانے کا میری بہنوں، ایک ٹکڑا کھانے کا زمین کی طرف اللہ پھینک دے، سارے کھانوں کو خراب کر دے گا. پوری دنیا کے کوئی جاندار کھانا نہیں کھا پائے گا. 1 لیٹر پانی پوری دنیا کو بدبودار کرے گا. ہزاروں سال تک جہنمی کھانا مانگے گا، ہزاروں سال تک جہنمی پانی مانگے گا. بولو، گناہ کرنے سے پہلے سوچ لو کیسے کھا پائیں گے یہ کھانا. تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا برداشت نہیں ہوتا، تھوڑا سا تیل زیادہ ہو گیا، تھوڑی سی مرچی زیادہ ہو گئی، زبان کو عادت نہیں ہے. زبان کو عادت ہے چٹخارے دار کھانا کھانے کی، زبان کو عادت ہے مزیدار کھانا کھانے کی، زبان کو عادت ہے گرم گرم تازہ تازہ لذت والا کھانا کھانے کی. کیسے برداشت ہوگا، کیسے برداشت ہوگا بتا دو. اللہ ہم کو بچا لیا رب، اللہ ہے نا. 1000 سال کے بعد جب دیا جائے گا تو یہ کھانا، یہ پانی دیا جائے گا. دیکھ لو. اور بتاؤ، جہنم کے دروازے پر عذاب دینے کے لیے کتنے فرشتے موجود ہیں حدیث کے حساب سے سن لو. 1 نہیں، 2 نہیں، ایک جہنم کے دروازے پہ 4 لاکھ فرشتے پہرا دے رہے ہیں، عذاب دے رہے ہیں. اللہ، ایک فرشتہ بھی ہوتا کافی تھا، ایک فرشتہ بھی ہوتا کافی تھا. 4 لاکھ فرشتے جہنم پہ، ایک جہنم پہ پہرے دار ہیں عذاب دینے کے لیے. کیسے مقابلہ کریں گے ہم ان فرشتوں کا؟ اور یہ کوئی کیسے فرشتے ہیں حدیث میں بتاؤ؟ کوئی نورانی فرشتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انتہائی کالے، انتہائی کالے، ان کے دانت باہر کو نکلے ہوئے، ان کے دانت باہر کو نکلے ہوئے، اور ایک کندھے کے بیچ سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ، 2 کندھوں کے بیچ کا فاصلہ فرشتوں کے 2 مہینے کی مسافت ہے. اگر کوئی یہ کندھے سے چلنا چاہے، 2 مہینے کے بعد دوسرے کندھے پہ پہنچے گا. ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، سخت بے رحم،
सख्त बेरहम। फरिश्ते बोलते ही हम तसव्वुर करते हैं बड़े नूरानी चेहरे वाले, बड़े खूबसूरत होंगे, लेकिन जहन्नम के फरिश्ते कोई नूरानी फरिश्ते नहीं है। इंतहाई काले, इंतहाई सियाह, इंतहाई दांत बाहर को निकले हुए, सख्त बेरहम, इतने मोटे, इतने बड़े बड़े, एक कंधे से दूसरे कंधे तक पहुंचो तो 2 महीने लग जाएं। हमारी हैसियत तो चूंटी के बराबर भी नहीं होगी, चूंटी के बराबर नहीं होगी। इंसान आज से अकड़ अकड़ के चलता है, बड़ा घमंड, बड़ा घमंड, बड़ा तकब्बुर। आओ देख लो क्या है ये तकब्बुर, क्या किस बात पे घमंड है। कल भी मिट्टी था, जाके मिट्टी में ही सोना है। अकड़ अकड़ के चलता, बातों में अकड़, चाल में अकड़, सोच में अकड़, तकब्बुर, तकब्बुर खत्म ही नहीं होता है तकब्बुर। देख लो ना तकब्बुर कैसा है, बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था, एक आदमी आग सुलगा रहा है, बदसूरत आदमी जो मुसलसल आग सुलगा रहा है और दौड़ दौड़ के आग को भड़का रहा है। इंतहाई बदसूरत, इंतहाई बदसूरत। जरा गौर से देखो ना, हदीस से कभी नहीं सुनी हमने तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया एक काला इंतहाई बदसूरत आदमी मुसलसल आग दहका रहा है, दौड़ दौड़ के आग सुलगाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ख्वाब में, ऐ जिब्राइल ये कौन है, ये कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जहन्नम का दारोगा मालिक है, जहन्नम का जो सबसे बड़ा इंचार्ज है, मालिक, वो कोई खूबसूरत फरिश्ता नहीं है, वो काला, इंतहाई काला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब से दुनिया बनी है मुसलसल 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 वो आग को भड़का रहा है और क़यामत तक वो जहन्नम की आग को भड़काता रहेगा। और जहन्नम में डाले जाने के बाद भी मालिक का काम यही है कि जब जब कोई लम्हा खबत जरा सी भी आग अगर मध्यम हो जाएगी, जरा सी भी आग बुझने पे आएगी, ये उसको भड़काता रहेगा। जब से बनी है तब से अब तक, क़यामत तक। और जब जहन्नमी डाले जाएंगे उसके बाद भी इसका काम आग को भड़काना ही है। सोचो ऐसे ऐसे खतरनाक फरिश्ते अल्लाह ने सिर्फ आग को भड़काने के लिए रखे हैं। या अल्लाह, है ना। आपको बताऊं, क़यामत का दिन होगा, जहन्नम लाई जाएगी मैदान हश्र में। सबसे पहले अंबिया जहन्नम को देखकर इतने खौफजदा होंगे और पुकार के कहेंगे रब्बी सल्लिम, रब्बी सल्लिम। तुम तो नबी हो, तुम तो बख्शे हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तो जन्नतों का वादा किया है, तुम्हें क्या जरूरत है खौफजदा होने की। लेकिन जहन्नम की चिंगार, जहन्नम की आवाज, जहन्नम की चीखें, जहन्नम का बेकाबू होना ऐसा होगा, अंबिया डर के मारे कह रहे होंगे ऐ मेरे रब मेरी हिफाजत फरमा, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे। जिस जहन्नम से डर के गुनाह छोड़ना चाहिए था, कभी वो जहन्नम का डर हमारे दिलों में आया ही नहीं। हमने समझा बस जहन्नम है, पहले जिंदगी तो सुकून से गुजार ले। पता नहीं वो कौन सा सुकून है जो अल्लाह की नाफरमानी करके भी नहीं मिलता, हराम खा के भी दिल खुश नहीं होता, जहन्नम वाजिब करके भी खुश नहीं होता। ऐ माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, ऐ बेनमाजियों, ऐ ज़कात नहीं देने वालों, आओ सुन लो रब कौन से जहन्नम की बात करता है कुरान के अंदर। जिस जहन्नम को हमने बड़ा हल्के में लिया, बड़ा लाइट लिया, होगी कोई आग, ऐसी वैसी आग, देखा जाएगा। अल्लाह ताला है ना माफ करने वाला, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। आओ देख लो कुरान करीम रब रहमान जहन्नम के बारे में कितनी भयानक बातें बता रहा है। अल्लाह अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा, आमीन। मैं बताऊं आपको, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु
वो उमर जिसको जन्नत की खुशखबरी मिल गई थी दुनिया में, अंबिया मैदान हश्र में खौफजदा, उमर खुशखबरी दे दी गई थी जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। कुरान पढ़ते जब जहन्नम की आयतों पर से गुजरते थे ना, बेहोश हो जाते थे। तुम्हारे लिए तो जन्नत मुकर्रर है, जन्नत तय है, बेहोश क्यों, डर क्यों, दिल ऐसे कांप जाता। हम तो गूंगे बहरों की तरह कुरान पढ़ते हैं, एक आयत समझ में नहीं आती है। क्या कहता है हमारा रब हमसे? जहन्नम की आयतें भी मजाक मजाक में पढ़ के गुजर जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जहन्नम की आयतों पे से गुजरते बेहोश हो जाते। आओ बताओ सहाबा इकराम, जिस जहन्नम से हम बेफिक्र है, जिस मौत को हम भूल गए, जिस कब्र को हम भूल गए, मेरी बहनों आओ देख लो सहाबा इकराम का क्या अंदाज था, क्या अंदाज था। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी बाजार गए थे अपने दोस्त के साथ। वहां उन्होंने देखा एक लोहार भट्टी में से लोहा निकाल रहा था, आग का, लाल लाल। जब देखा इतना रोने लगे लोहार की भट्टी देख के, सारे बाजार वाले पता नहीं क्या हुआ है जमा हो गए। पूछा क्या हुआ अब्दुल्ला, रो क्यों रहे हो? लोहार की भट्टी ऐसी, जहन्नम फिर कैसी होगी? जहन्नम, लोहार की भट्टी को देख के जहन्नम याद आती थी। बताओ, अता सुलेमी एक सहाबी हैं, अता रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा इनके पड़ोसी ने तन्नूर सुलगाया रोटियां बनाने के लिए। तन्नूर होता था ऐसे आग में, मटके में आग डाल के। जब देखा तन्नूर सुलगाया, पड़ोसी इतना रोए गिर के बेहोश हो गए। सारे मोहल्ले वाले आते हैं, बीवी आती, हुआ जाए। जब होश आया तो देखा बेहोश पड़े हैं। मुझे जहन्नम की तन्नूर याद आ गई। ये मामूली चूल्हा, ये मामूली तन्नूर, ऐ रब क्या हाल होगा जब तू तन्नूर सिलगाएगा लोगों को डालने के लिए। तन्नूर तो आज भी सिलगा हुआ है, बस हम उससे गाफिल हैं। ये हमारे चेहरे देखो, गौर से जहन्नमियों की फटकार हमारे चेहरे पे बरसती है। क्या आपको ईमान का नूर नजर आता है इन चेहरों पे? जहन्नमियों की लानत। ये देखो चेहरे बेनमाजियों के चेहरे, हमारे हम हराम खाने वालों के चेहरे। ना जिंदगी सुकून की है, ना मौत सुकून की है। सहाबा इकराम को देखो, इनकी जिंदगियां मैदान जंग में गुजरी, इस्लाम को पहुंचाते पहुंचाते। जिंदगियां ना मस्जिदों में गुजर गई, रातें अल्लाह की इबादत में गुजर गई। लोहार की भट्टी को देख रहे तो बेहोश हो रहे, बाजू पड़ोसी का तन्नूर देख रहे तो बेहोश हो रहे। मेरी बहनों, हमारी जिंदगी पे गौर करो, हम किधर जा रहे हम? कहां है हमारी जिंदगी में जहन्नम? गुनाह करते हुए दिल कांपता क्यों नहीं है? गुनाह करते हुए एक बार जहन्नम को याद करके तो देखो, शायद अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा ले, शायद बचा ले। आप बताओ, सुफियान सौरी एक सहाबी रसूल है, जब इनके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता ना, जब ये कुरान में जहन्नम की आयतें पढ़ते, इनको खून का पेशाब आता था, खून का पेशाब आता, हैबत के मारे, डर के मारे। कैसे थे हमारे सहाबा इकराम? जहन्नम से क्या कभी किसी को इतना डर लगा? दिल पे हाथ रख के बोलो, खून का पेशाब आ जाए, बेहोश हो जाए, गिर के रोने लगे। जहन्नम की बात भी हम खड़े सुनते रहते, कभी झपकी भी ले लेंगे, जहन्नम में भी नींद आती हमको। तो इतने ढीठ हो गए हम, इतने ढीठ हो गए हैं। ना गुनाहों पे शर्मिंदगी है,
ना अल्लाह का डर है, ना जहन्नम को सोच सोच के दिल हौलता है। हमको तो जहन्नम पर से गुजरो या जन्नत पे से गुजरो, एक झपकी लेंगे खत्म हो गई बात। या अल्लाह, एक मर्तबा क्या होता है, रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सारे सहाबी हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, सुफियान सौरी, सब के सब, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु की पूरी रात करवट बदलते गुजर गई बेचैनी से, रात को नींद आके नहीं दे रही थी। बेटी ने कहा, बाबा सारी दुनिया रात को सो गई, आप भी आराम करो ना, आप भी आराम करो। तो बाबा ने कहा, बेटा जहन्नम की आग तेरे बाबा को सोने नहीं दे रही है, बेटा जहन्नम की आग तेरे बाबा को सोने नहीं देती है। नींदें तो हमारी भी उड़ती हैं आज, कभी मोबाइल देखते हुए रात गुजर गई, कभी फजूल सी एक बात की टेंशन जो मेरे बारे में थी भी नहीं, उसको सोचते हुए रात गुजर गई, कभी जवान बेटी की शादी में रात गुजर गई, तो कभी जवान बेटे के बारे में सोचते हुए रातें गुजर जाती हैं। रातें तो हम भी जागते हैं, लेकिन जहन्नम की याद में नहीं, कब्र की याद में नहीं, अल्लाह के अजाब की याद में नहीं। रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बेटा कैसे सो, तेरे बाबा को जहन्नम की याद में रात को नींद नहीं आती है। क्या इनके अमाल रहे होंगे, वो कौन सा खौफ होगा जो रातों को भी सोने नहीं देता था इनको अपने बिस्तर पे। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, ये वो जहन्नम है जिससे मैं और आप बेफिक्र हो गए। ये वो जहन्नम है, मैं और आप ये समझ बैठे कि ये कीमती लिबास, ये कीमती घर, ये कीमती गाड़ियां, ये मोबाइल, ये मजेदार गरम गरम खाने, ये ठंडे ठंडे शरबत, बस यही जिंदगी है, यही खत्म है जिंदगी। जिस जहन्नम को भूल के हम इन चीजों के पीछे लगे हैं, ये वो जहन्नम है। सुन लो, ये वो जहन्नम है। आओ आज से ये जहन्नम से बचने की हम तैयारी कर ले। दूसरा पड़ाव चलो जहन्नम का, ये तो जहन्नम थी जो मैं आपको बता दी, पूरे कुरान का मुख्तसरन बयान किया। इतना टाइम भी तो नहीं होता कि खुल के सारी बातें बताए। किसके लिए है ये जहन्नम, जरा गौर से देखो आप। जहन्नम कैसी है, थोड़ा तो समझा होगा किसके लिए है। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्लीस को आग का जोड़ा पहनाया जाएगा। जिस इब्लीस को बड़े शौक से हम फॉलो करते हैं, चाहे वो बिग बॉस के जरिए हो, चाहे वो बाल के जरिए हो, चाहे किसी और के जरिए, आओ सुन लो इब्लीस की हकीकत। सबसे पहला आग का जोड़ा इब्लीस को पहनाया जाएगा। इब्लीस आग के मिंबर पे खड़ा होगा, सारे उसके चेले चांटे, उसके शयातीन, उसके इंसानी दोस्त, उसके इंसानी फॉलोवर्स इब्लीस के गोल जमा होंगे। उसके बाद इनको भी आग का जोड़ा पहनाएगा अल्लाह ताला। ये चीख चीख के कहेंगे, इब्लीस हमने तो तुझे माना था, हम तेरे मुत्तबईन थे, हम तेरे फॉलोवर्स थे, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। उस वक्त इब्लीस का एक ही जवाब होगा सबके लिए। वो कहेगा, सुनो मुझे मलामत ना करो, अपने आप को मलामत करो। मैंने तुम्हें नहीं बहकाया था, तुम थे ही बदकार। जरा सा मैंने क्या तुमको दावत दी, जरा सा मैंने तुमको क्या बुलाया, तुम तो मेरी तरफ खींचे चले आए, तुम तो थे ही बदकार, अपने आप को मलामत करो। आज शैतान पे सारा दोष डाल देते हैं ना, हम भी तो शैतानी है, वो शैतान है, हम शैतानी है। फर्क क्या है?
فرق کیا ہے ہمارے بیچ میں بتا دو. اور بتاؤں جہنم کا وہ جوڑا جو پہنایا جائے گا، سن لو قرآن کیا کہتا ہے، وہ تارکول کا ہوگا، ڈابر کا. جو سڑک بنتی ہے نا ڈابر، جو آگ کو اپنی طرف پکڑ لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، آگ کو جانے نہیں دیتی ہے، آگ کو ٹھنڈی ہونے نہیں دیتی ہے، یہی ڈابر، یہی تارکول کا جوڑا پہنایا جائے گا ابلیس کو بھی اور ابلیس کے فالوورز کو بھی، ابلیس کے چاہنے والوں کو بھی. بڑا مزہ آتا تھا لوگ ہمارے لباس کی تعریف کرے. قیمتی لباس پہننے والوں، قیمتی خوشبوئیں لگانے والوں، ایک ایک فنکشن میں 5-5 10-10 20-20 ہزار کا، اب تو 50,000 کا، 1,00,000 کا لباس، اتنا مہنگا مہنگا. کیا یاد کرو گے جب اللہ تارکول کا لباس پہنائے گا جہنمیوں کو؟ ذرا دیکھ لو. اللہ تو ہمیں جنتیوں کا لباس پہنانا. اے رب ہم پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما. آمین ثم آمین. یہاں پہ دیکھو کچھ لوگ ہوں گے جو لایا جائے گا ان کو اور جہنم میں ڈال کے جہنم ان کے لیے بند کر دی جائے گی. 1000 سال تک نہ کھانا نہ پانی. کچھ جہنمی ہوں گے، آگ کا پہاڑ ہوگا، آگ کے پہاڑ پہ ان کو چڑھایا جائے گا. کون سے جہنمی؟ جہنمی کس کے لیے؟ ذرا غور سے دیکھو. یہ آگ کا پہاڑ چڑھنے میں 70 سال لگ جائیں گے، اور 70 سال کے بعد جب وہ اوپر پہنچے گا زور سے ڈھکیلیں گے فرشتے، پھر نیچے، ایک بار پھر آگ کے پہاڑ پہ چڑھیں گے. اللہ معمولی پہاڑ چڑھنا نہیں ہوتا ہے، 4 سیڑھیاں ہم سے چڑھی نہیں جاتی ہے، سانس پھولتی ہے، دم آتا ہے، بیٹھا جاتا ہے. اے رب آگ کا پہاڑ کیسے چڑھیں گے؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے، خاندان والوں کو خوش رکھنے کے لیے، قوم کے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. آؤ سن لو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اللہ سے بڑھ کے لوگ ہو گئے ہمارے لیے، اللہ سے بڑھ کے ہو گئے لوگ. لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے. 4 لوگوں میں رہنا بھی تو ہے نا جی. لوگ کیا بولیں گے. رشتے نبھانا ہے جی. رشتے نبھانے کے لیے اس کے شرک کی دعوت، اس کے بدعت کی دعوت، اس کی حرام کی دعوت وہ بھی قبول کریں گے. نہیں نہیں نہیں. جو خاندان، قوم، برادری، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، آگ کے پہاڑ پہ اللہ اس کو چڑھائے گا. اللہ اکبر. اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر دل میں بیٹھ گیا ہے. بے ڈر ہو کے جیو، کھل کے شریعت کی پابندی کرو، کھل کے جیو، اسلام کی راستے پہ آؤ. کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ کے ڈر کے. اے رب ڈریں گے تو صرف تجھ سے ڈریں گے، تیری مخلوق کا کسی سے نہیں ڈریں گے. ٹھان لو آج کے دن. کسی کا ڈر نہیں، کسی کا ڈر نہیں. ایک ڈر رکھو اللہ کا. ایک ڈر، جب مرنا ہے تبھی مریں گے. کوئی نہ دولت دے سکتا ہے، نہ کوئی نصیب بدل سکتا ہے، کوئی نصیب چھین نہیں سکتا. اے رب جب کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ دل میں بس تیرا ڈر پیدا کر دے، تیرا ڈر پیدا کر دے. اور بتاؤں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جہنمی، اللہ تعالیٰ جہنم میں آگ کے ستون ہیں، ان ستونوں سے، ان پلر سے باندھ دیا جائے گا فی عمد ممددہ. اللہ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا. ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ کتنی ہوگی بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں فاصلہ ہے، اتنی جگہ لگے گی ایک جہنمی کو بیٹھنے میں. اتنا موٹا، اتنا موٹا، سوچو ایک دانت ایک پہاڑ کے برابر. اس کے بیٹھنے کی جگہ پھر کتنی ہوگی؟ ایک بازو، ایک ہاتھ. اللہ کے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बैजा के जितना, बैजा एक पहाड़ है, एक हाथ एक पहाड़ के जैसा, और एक रान वरकान पहाड़ के बराबर होगी। पहाड़ों के नाम तक हदीसों में है। दांत उहुद पहाड़ के बराबर, एक हाथ बैजा पहाड़ के बराबर, एक रान वरकान पहाड़ के बराबर। एक एक जरा सा वेट बढ़ गया 2-4 किलो, उफ, हालत खराब हो जाती है दुनिया के अंदर। जहन्नमी इतना मोटा, इतना मोटा, इतना मोटा, इतनी खाल उसकी 63 फीट मोटी, और अल्लाह उसको अजाब दे रहा है, अजाब दे रहा है, अजाब दे रहा है। सोचो, तसव्वुर करो, तसव्वुर भी हम नहीं कर पाएंगे। जिस कोड़े को इंसान और जिन्नात मिलके उठा नहीं सकते, वो कोड़ों से मार पड़ रही होगी। सबसे पहले किसके लिए है जहन्नम, आओ बताओ कैसा है जहन्नमी, मैंने आपको बता दिया। जहन्नम क्या है बता दिया, मोटा मोटा सुनते जाओ। जहन्नम किसके लिए, पहले नंबर पे काफिर और मुशरिक के बाद हर बेनमाजी के लिए जहन्नम है। सुन लो, बेनमाजी के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने देखा मेराज के दौरे में एक आदमी का सर कुचला जा रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिनका सर कुचला जा रहा है? 2 किस्म के लोग होंगे जिनका सर कुचला जा रहा होगा, कब्र के अंदर भी, जहन्नम के अंदर भी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो नमाज के वक्त सोया करते थे। फजर में सोने वालों, कब्र में भी सर कुचला जाएगा, जहन्नम में भी सर कुचलने का अजाब दिया जा रहा है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज फजर चुकती है हमारी, तो रोज फजर। जोहर का मूड नहीं होता है, असर में थे ही नहीं, मगरिब में सोए तो इशा को उठे ही नहीं। 5 नमाजों के 5 बहाने हैं हमारे पास। जोहर असर बिसर गए, मगरिब को थे नहीं, इशा को सोए तो फजर को उठे नहीं, बात खत्म। 2 लोगों के लिए जहन्नम का सबसे बड़ा अज़ाब उस कोड़े से, जिस कोड़े को दुनिया के तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर हटा नहीं सकते, वो कोड़े से तेरा सर कुचला जा रहा होगा। एक ऐबे नमाजी सुन, नमाज के वक्त सोने वाला। दूसरा वो शख्स जो कुरान पढ़ के भूल गया, जो कुरान की आयतें याद की थी बचपन में, जवानी में, लेकिन अभी नहीं पढ़ा। जो 2-4 सूरे थे वो भी भूल गए। हाफिज नहीं, हर कुरान को भूलने वाला। हाफिज तो पहले नंबर पे, जो कुरान को याद करके भूल गया उसके लिए भी यही पत्थर से सर कुचले जाने की सजा है। जितना कुरान याद था, उठाओ कुरान, आज से दोहराना शुरू कर दो, इससे पहले कि कब्र में जाओ। क्या ये सजा मंजूर है? बोलो, क्या ये सजा मंजूर? रब हरगिज नहीं, रब हरगिज नहीं, है ना। दूसरा बताऊं आपके लिए, जहन्नम का अजाब किसके लिए कौन सा है? सुनो, जो लोगों के पास सोना था, चांदी था, रुपया था, पैसा था, फिक्स डिपॉजिट था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने ज़कात नहीं दी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनकी सारी दौलत को इकट्ठा करेगा, इसकी तख्तियां बनाई जाएंगी, गरम गरम तख्तियों को जहन्नम में गरम किया जाएगा, बिल्कुल लोहार के भट्टी की तरह। फिर इसके माल से इसके कमर को, इसकी पीठ को और इसकी पेशानी को दागा जाएगा। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल की ज़कात नहीं देता था उसके माल को गरम गरम तख्तियां बनाई जाएंगी, कमर पे, पीठ पे, पेशानी पे इसको दागा जाएगा। कहां कहां दागा जाएगा वो भी है हदीस में, जरा देख लो ना मेरी बहनों। मैं आपको बताऊं,
زکات کے مسئلے کو نا ایسے سمجھو، بڑا بھیانک مسئلہ ہے زکات کا، ہمت نہیں ہوتی ہے زکات دینے کی. ذرا غور سے زکات کے مسئلے کو سمجھو. جہنم ہے، بڑی وعید ہے جہنم کی. ہم کڑنگڑا لاتے ہیں، خربوزہ، تربوزہ، آسان زبان میں کڑنگڑا، سنترا، کیلا، فروٹس، ترکاری. اگر ہم دکاندار سے یہ کہیں کہ اس کے چھلکے کے پیسے مت لینا، مانے گا؟ ہم فروٹس لاتے ہیں، پتہ ہے ہم کو گھر جا کے آدھے سے زیادہ تو پھینکنا ہی ہے، پیسے چھلکے کے ساتھ دے کے خرید کے لاتے ہیں. اور جب گھر لائے، ہر فروٹس صاف کیا، کھانے کے قابل بنایا، پتا چلا جو پیسے دے کے چھلکے خرید کے لائے تھے وہ تو کچرے میں چلے گئے. اللہ نے وہاں سے ایک اور مخلوق کے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا، گائے، بیل، بکری، تیرے پھینکے ہوئے چھلکے جو ہم چاہ کے بھی نہیں کھا سکتے، وہ چھلکوں کو نہیں کھا سکتے. کوئی کھا کے دکھا دے کڑنگڑا، کوئی کھا کے دکھا دے سنترے کے چھلکے، نہیں کھا پائیں گے. ہم ترکاری لاتے ہیں، پوری قیمت ہم نے دی، پورے پیسے ہم نے دیے، کچرے کے بھی پیسے ہم نے دیے. اور جب گھر لائے، ترکاری صاف کی، پتا چلا آدھے سے زیادہ بھاجی، آدھے سے زیادہ کاڑیاں، آدھے سے زیادہ کچرے میں چلی گئی. اور ذرا بھی برا نہیں لگتا ہم کو کچرا پھینکتے ہوئے، ذرا بھی برا نہیں لگتا. اس سے ایک اور مخلوق کا پیٹ بھرتا ہے. ہمارا مال بھی یہی حالت ہے. مال کی صفائی چاہتے ہو کہ یہ مال میرے لیے فائدہ مند ہو، میں خوبصورت کر کے صاف کر کے اپنے مال کو کھاؤں، تو سن لو، مال کی زکات دینا ضروری ہے. سونے پہ زکات ہے، چاندی پہ زکات ہے، فکس ڈپازٹ آپ نے رکھا ہے اس پہ زکات ہے، کمرشل پراپرٹی ہے، بیچنے کے لیے لے کے رکھے ہیں، پلاٹس کرائے پہ دے رہے ہیں، گھر کمرشل بزنس کما کے دے رہی وہ چیزیں، تو زکات ہے. رہنے والے گھر پہ زکات نہیں ہے، آپ کتنے بھی بڑے گھر میں رہو زکات نہیں ہے. پہننے والے کپڑوں پہ زکات نہیں ہے، کتنے بھی مہنگے کپڑے پہنو کوئی زکات نہیں ہے. کتنا بھی اناج سال کا سال گھر میں بھرو، کھانے والے اناج پہ کوئی زکات نہیں ہے. کتنے بھی مہنگے برتن یوز کرو، برتن پہ زکات نہیں ہے، کپڑے پہ زکات نہیں ہے، موبائل پہ زکات نہیں ہے، گاڑی پہ زکات نہیں ہے. سونا، چاندی، پلاٹس، کمرشل پراپرٹی ہے نا، ان چیزوں پہ زکات ہے. اور بکری، اونٹ، گائے، کھیتی باڑی، اس پہ بھی زکات ہے، اس پہ بھی زکات ہے. اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو چھوڑے گا ایک میدان میں، اور یہ اس کو روند کے کچل کے جا رہے ہوں گے. پوچھا گیا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ جانور ان کو کچل کے جا رہے قیامت کے دن. اللہ کہے گا یہ تیرا وہ مال ہے، یہ تیرے وہ جانور ہیں، پالنے کا تو بڑا شوق تھا لیکن تو نے اس کی زکات نہیں دی. جانور پہ زکات، کھیتی باڑی کی پیداوار پہ زکات ہے. غور سے اپنے پراپرٹی کا اندازہ لگا لو، ہمارے پاس کیا ہے، کتنا ہے. چوکنا رہنا چاہیے کہ اے رب کہیں تیری نافرمانی تو نہیں ہو رہی. اگر آج یہ مال کھاؤں گا تو کل زخم کیسے کھاؤں گا، کل بدبودار کھانا کیسے کھاؤں گا. اللہ اکبر. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، یہ تو زکات نہ دینے والوں کے لیے جہنم کی سزا. اب یہ حدیث نہ بڑا غور سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا خواب بیان کرتے ہیں.
मैंने ख्वाब में देखा 2 आदमी मेरे पास आते हैं, मुझे उठाया और ले चले बाजू पकड़ के। एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। इन दोनों आदमियों ने कहा ऊपर चढ़ जाओ। मैंने कहा कैसे ऊपर चढ़ जाऊं, नहीं चढ़ पाऊंगा, ऊपर नहीं चढ़ सकता। इन दोनों ने कहा हम सहारा देंगे, उठो और ऊपर चलो। दोनों ने मुझे मिल के ऊपर उठाया, यहां तक के मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने वहां बहुत चीखो पुकार सुनी, इतना शोर, इतनी आवाज, इतनी चीखें, और बहुत बदतरीन हालत में मैंने लोगों को देखा। पूछा ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोजा इफ्तारी करने में जल्दी करते थे। नमाज का हो गया, ज़कात का हो गया, इफ्तारी इतने चौकन्ना रहना, ना जल्दी ना देर, चौकन्ना रहो अपनी इबादतों के मामले में। देर से करोगे तो भी नहीं चलेगा, जल्दी करोगे तो भी नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन जहन्नमियों को भी दिखाया गया जो इफ्तारी जल्दी करते थे। होते रहती। एक आदमी ने तो एक मर्तबा मस्जिद में ऐलान हुआ फला मर गया, करेक्ट इफ्तारी के टाइम पे माइक की आवाज आई, फौरन इफ्तारी शुरू हो गई हमारी। तो इतनी गड़बड़, पहले देख तो लो टाइम क्या है, सही टाइम क्या हो रहा है। चौकन्ना रहो अपनी इबादतों के मामले में, ये नहीं कि बस कर रहे बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। बताऊं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज क्या दौरे का बताते हैं। जब मेराज की रात गए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल्लाह वहां पे औरतों को देखा था। जरा देखो गौर से, इनके बड़े बड़े लाल तांबे के नाखून थे, नाखून तांबे के, लाल तांबे के नाखून, और ये इससे अपने चेहरे को नोच रहे थे, अपने सीने को नोच रहे थे और अपना खुद का गोश्त खुद खा रहे थे। इतना घिनौना ये मंजर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपकी उम्मत की वो लोग हैं जो दूसरों की गीबत करते थे। चुगली में जिंदगी गुजर गई, ना नेक इंसान को छोड़ा, ना बदकार को छोड़ा, ना मर्द को छोड़ा, ना औरत को छोड़ा, ना दूर के रिश्तेदार को छोड़ा, ना करीब के रिश्तेदार को छोड़ा, अपनी औलाद को छोड़ा, ना दूसरे की औलाद को छोड़ा। हर एक में कीड़े नजर आते हमको, तो बैठ गए बस बुरा बोलने के लिए। सुन लो अंजाम मेरी बहनों, जिंदगी का एक उसूल याद रखो। आज सुनना चाहोगे? एक डिसिप्लिन बना लो जिंदगी का, एक उसूल बना लो। जिंदगी को इतना मसरूफ कर लो, इतना मसरूफ, इतना बिजी बना लो, दूसरों के ऐब देखने के लिए आपके पास वक्त ही ना बचे। ऐब देखता कौन है? जिसके पास बड़ी फुर्सत है, या सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। तुम बोलोगे जरा उसको देखो, अरे रहने दे। जिंदगी को इतना मसरूफ बना लो, मोबाइल में नहीं, इल्म हासिल करने में, इबादतों में, दीन के कामों में। जिंदगी को इतना मसरूफ बना लो तुम्हारे पास किसी के ऐब देखने का वक्त ही ना रहे। अरे जिंदगी इतनी मसरूफ है ना, यकीन मानो अल्लाह की कसम कह रही हूं मैं, जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा छोटी है जिंदगी। हमें लगता है जिंदगी बहुत छोटी है, वो जो लगता है ना उससे भी छोटी है। देखते देखते बचपन गुजरा। आज भी याद है जब मैं पहले दिन स्कूल गई थी, आपको भी याद होगा। कल की बात तो थी जब मैं नई दुल्हन थी, हाथों में मेहंदी थी और मैं संडे का दिन था, आप ही के चेहरे थे और मैं बयान कर रही थी। कल की बात है।
आज देखो इस कुर्सी पे बैठ के 24 साल गुजर गए, 25वां साल शुरू हो गया। बूढ़े आप भी हो गए, बूढ़ी मैं भी हो गई। देखते देखते कल की बात थी, हमारे बाजू बैठ के बयान सुनने वाले, उनके मर के भी 10 साल हो रहे हैं। कल की बात थी। जिंदगी इतनी मुख्तसर है, हमारी तसव्वुर से भी ज्यादा मुख्तसर है, और हमारे अपने ऐब देखने के लिए टाइम नहीं है। दूसरों के ऐब हम क्या देखेंगे, दूसरों की जिंदगियों में क्या झांकेंगे, बोलो कितना देखेंगे, कितना देखेंगे, कितना देखेंगे। मत देखो किसी के लिए। मोमिन की जिंदगी ना बड़ा मसरूफ जिंदगी होती है मोमिन की। मोमिन इतना खाली नहीं रहता कि इंस्टाग्राम चलाए, मोमिन इतना खाली नहीं रहता कि फेसबुक यूज करे। मोमिन के पास इतनी फुर्सत नहीं है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मोमिन के पास इतनी फुर्सत नहीं होती आजू झांके बाजू झांके, इसके पास कौन आया, उसके पास कौन गया। मोमिन की जिंदगी इतनी इतनी फालतू नहीं है, मोमिन की जिंदगी इतनी बेकार नहीं है, इधर भी झांके उधर भी झांके, मायके में भी देखे, ससुराल भी कंट्रोल करे। अरे इतनी जरूरत नहीं है, हम अपना देखें, अपनी खबर देखें, अपनी आखिरत देखें, बस काफी है मेरे रब। जब मैं यहां से जाऊं कुछ नामा अमाल मेरे पास भी तो हो, कुछ तो तोशा हो मेरे पास भी मेरी खबर का। इतनी मसरूफ कर लो ना जिंदगी को, दूसरों के ऐब देखने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे, फिर जिंदगी बहुत खूबसूरत दिखने लगेगी आपको। बताओ आगे सिर्फ जहन्नम का अब तक जो सुनते आ रहे हैं, जहन्नम क्या है, कैसी है, किसके लिए है। एक दुआ सीख लो जहन्नम से बचने के लिए, और वो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। एक है रब्बना अजिरनी मिनन नार, लेकिन वो याद नहीं रहती। रब्बना आतिना सबको याद रहती है, और सही हदीस से साबित है, दुनिया में भी भलाइयां मिल गई, आखिरत में भी मिल गई। पढ़ लो, चलते फिरते उठते बैठते, ऐ मेरे रब मुझे जहन्नम की आग से बचा। आतीना फिद दुनिया हसना फिल आखिरा हसीना, है ना, दुनिया में भी अच्छाई दे, आखिरत में भी अच्छाई दे। और हम अल्लाह से बड़ा गिड़गिड़ा के कहते हैं, ऐ हमारे रब वक़िना अज़ाबन्नार, जहन्नम की आग से हमको बचा ले। ये बेहतरीन दुआ है अल्लाह से जहन्नम की आजादी मांगने का। आओ आज से हम ये दुआ शुरू करते हैं। आगे अल्लाह ताला ने बाग वालों का किस्सा बड़े जबरदस्त अंदाज में बता दिया है। आओ जरा ये बाग वाले कौन थे देख लो। एक गांव में एक आदमी था, इसका बड़ा खूबसूरत बाग था, बड़े रसीले रसीले मीठे मीठे फल वाला बाग। जिस दिन फल उतारता सारे गांव के मिस्कीन फकीर को भी फलों का एक हिस्सा बांट देता। ये वाकया अल्लाह ने चुप नहीं बयान किया, मैं आपको इसके हैरान करने वाला एक पॉइंट बताऊंगी, हैरान करने वाला पॉइंट बताऊंगी, जरा ध्यान से सुनना। ये गरीबों मिस्कीनों को बांट देता बाग का फल। एक दिन बाप की वफात हो गई, बाप मर गया। इसके 3-4 बेटे ये कहते हैं हमारा बाप तो ना मुफ्त में गरीबों को मिस्कीनों को फल दिया करता था, अगर इस बार हम ये फल भी बेच दें, मंडी में लगा दें, कितना फायदा होगा, देखो कितना फायदा होगा। चारों बेटे कहते हैं हाँ तुम ठीक करे हो, लेकिन गांव वालों को बरसों से आदत पड़ गई है मुफ्त का फल खाने की, कैसे जान बचाओगी, कैसे जान बचाओगी। एक भाई कहता है रात को चलेंगे फल काटने के लिए, जब सारा गांव सोएगा। रात को उठे, एक ने दूसरे को उठाया, दूसरे ने तीसरे को उठाया, जल्दी चलो कहीं सुबह ना हो जाए, जल्दी जल्दी हम फल तोड़ेंगे, सुबह होने तक कानों कान किसी को खबर नहीं लगेगी, जल्दी चलो। जब गए फल तोड़ने के लिए बाग की तरफ,
قصہ قرآن میں موجود ہے، پورا قصہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں اللہ نے اس باپ اور بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے. ذرا دیکھو نا کیا بات ہے. اللہ کہتا ہے راتوں رات ہم نے ایک آگ کی چنگاری بھیجی، اس نے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا. جب یہ باغ میں پہنچے ایک نے کہا شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں بل محرومون، ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. اب چاروں اللہ سے گڑ گڑانے لگتے ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں، اے اللہ ہم کو معاف کر معاف کر معاف کر. اللہ نے معافی تو دیا، باغ پھر سے ہرا بھرا تو ہوا، لیکن اس میں بہت وقت لگ گیا، زندگی بیت گئی. اللہ کیوں یہ واقعے کو قرآن میں بیان کرتا ہے؟ ہر سال ہم اس کا ایک الگ معنی لیتے ہیں. کوئی جادو ٹونا نہیں، کسی کی نظر بد نہیں، ہماری بری نیت ہمارے مال کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. جہاں نیت بگڑ گئی، جہاں ارادے بگڑ گئے، میں بہن کو نہیں دوں گا، میں بھائی کا حصہ بھی کھا لوں گا، میں نہ زکات دوں گا، نہ یتیموں کو دوں گا، نہ غریبوں کو دوں گا، میری محنت کی کمائی ہے، میں اکیلا کھاؤں گا، یہ میرا ہے. نیت اگر کسی کی بدل جاتی ہے، جو ہے ہمارے کاروبار میں برکت، ہمارے مال میں برکت، ہمارے محنت کے پھل میں برکت اگر ہے تو ہماری نیتوں کی وجہ سے ہے. محنت انسان دیکھو نا، کوئی صبح سے شام تک کھڈے کھودتا ہے، کوئی صرف ایک سائن کر کے لاکھوں کما لیتا ہے، کوئی ایک سائن سے لاکھوں کما لیتا ہے. کاروبار میں برکت محنت سے نہیں، نیت سے آتی ہے، نیت سے آتی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے میسج ہے، تیری نیت اگر بگڑ گئی نا تو میں تیرے پھل میں کم کر دوں گا، تیرے محنت کے پھل کو جلا کے راکھ کر دوں گا. اگر کسی کو لگتا ہے دن بھر محنت کرنے کے بعد بھی خالی دامن ہے، اتنا محنت کرنے کے بعد بھی ہم بھکاری کے بھکاری ہیں، نیتوں کو صحیح کر لو مسلمانوں، نیتوں کو صحیح کر لو. دیکھو کسی کا حق تو نہیں دبا کے بیٹھے، دیکھو کسی کا مال تو نہیں کھایا، دیکھو کسی کا قرض لے کے ڈبو تو نہیں دیے. پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کر لو، پہلے حقداروں کو اس کا حق دے دو، اللہ بھر بھر کے تمہیں کمائی میں برکت، کاروبار میں برکت دے گا. کمائی کا پھل بھی کھانا ہے نا، نیتیں صحیح کر لو. ہماری اپنی کمائی ہم نہیں کھا سکتے، کیا مجبور انسان ہے. ذرا دیکھو جس گھر کو مضبوط بنانے کے لیے انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے نا، آخر میں وہی انسان کمزور ہو کے گھر کے کونے میں پڑا رہتا ہے، اپنا پھل خود نہیں کھا سکتا. جی بڑی محنت سے پالا تھا اولاد کو، یہ کمائے گی میں بیٹھ کے کھاؤں گی. جب اولاد پھل دیتی ہے یہ درخت، اللہ یا تو کھانے کی طاقت چھین لیتا یا زندگی ہی چھین لیتا. محنت کا پھل کھانا بھی نصیب کی بات ہے. کیا پیغام ہے قرآن کا. محنت کرتا ہے اس کا پھل کھانا بھی نصیب ہے تیرا، اولاد کی کمائی کھانا بھی نصیب ہے، میرے لگائے ہوئے درخت کا میں پھل کھانا بھی نصیب ہے میرا. اور اگر نیتیں بگڑ گئی اللہ تیری محنت کا پھل تیرے منہ سے چھین لے گا. نیتوں کو صاف رکھو اپنی. یہ قرآن کا پیغام ہے، میرا نہیں ہے. پھر کل کوٹ کے کوئی اور میسج کرے گی مجھے برا لگا پا. میری بہن معاف کر، برا لگا تو میں کیا کر سکتی ہوں. جو معاشرے کی جھلک ہے وہی میں دکھاتی ہوں. کچھ غلط میں نے کہا؟ جو معاشرے کی جھلکیاں وہی دکھائی جاتی ہے.
तुम अच्छे हो तो मरहबा, तुम्हारा अच्छा होना। हर किसी की नीयत खराब है मैं ये थोड़ी ना बोली। अगर खराब है तो आओ आज से सुधार ले। ज़ख़ूम का दरख्त कैसे खा पाओगे? आज मेहनत का फल खाने नहीं दे रहा अल्लाह ताला। जन्नत के फल कल क्या देगा अल्लाह बोलो? कल जन्नत के फल खाएंगे हम। अल्लाहु अकबर। दूसरा पैगाम ये है, गुनाहों की जैसे ही नीयत करता है इंसान, रोजी तैयार है, बाग में फल पके हुए हैं, गुनाहों की वजह से, गुनाहों के नीयत की वजह से तैयार रोजी को भी अल्लाह छीन लेता है। या अल्लाह। और लोग कहते हैं जॉब आने वाली थी, जवाब भी नहीं दे रहे। काम बनने वाला था, कारोबार पूरा सेट है, 25 साल का तजुर्बा है, लेकिन फायदा नहीं देता है। गुनाहों की नीयत, हमारे गुनाह हमसे हमारी रोजी छीन रहे। ये कोई जादू टोना नहीं है मेरी बहनों, कोई नजरे बद नहीं, ये हमारी नीयतों का फल है। ये हमारे गुनाह है जो हमसे हमारी रोजी छीन रहे। गुनाहों से तौबा कर लो। दुनिया में अल्लाह रोजी कम कर देता है और आखिरत में तो जहन्नम आई ही है गुनाह का बदला। न यहाँ सुकून है न वहां सुकून है। क्या करोगे इतने गुनाह करके, क्या करोगे? आगे बताऊं, अल्लाह जुल्म से रोकता है, बुरा अल्लाह ताला जुल्म से रोकता है अल्लाह। जो शख्स जुल्म नहीं करता है ना, उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा मुतमईन, सबसे ज्यादा खुश है। किसी का हक ना छीनो, राई के दाने के बराबर भी नहीं। बताऊं, एक मर्तबा एक यहूदी सफीर आता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के लिए। अब जगह जगह पोस्टर होते नहीं थे फोटो वाले के उमर को सारे लोग पहचाने। अब किसको क्या मालूम कि उमर कौन है? कौन उमर? हमने अपने एमएलए को देखा नहीं है, लेकिन फोटो में देखा है। क्या मालूम कौन उमर? पूरे मदीना में ढूंढ तो फिर रहा था, उमर कौन है, कहाँ है उमर, कहाँ है उमर? पता चला उमर आज है ना बैतुल माल के कुछ ऊंट गुम गए थे। उमर मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का अमीर, वो गुमशुदा ऊंटों को ढूंढने निकला है रेगिस्तान की तपती धूप में। हजरत उमर निकलते हैं ऊंटों की तलाश में, ढूंढते ढूंढते थक गए रेगिस्तान में। देखा एक दरख्त है, थोड़ा सा साया है, ऊंटों का कोड़ा रखा सिराने, थोड़ी देर बैठे आराम करने के लिए, वहीं आंख लग गई, सो गए। ये यहूदी ढूंढते ढूंढते पहुंचा उमर तक, वहां देखा चारों तरफ सहरा है, कोई पहरेदार नहीं। एक छोटे से दरख्त के साये में मुसलमानों का खलीफा, मुसलमानों का अमीर यहाँ पे गहरी नींद सो रहा है। अभी देखा एक जुमला उसने कहा, इसका मतलब ये गहरी नींद इनका बादशाह एक दरख्त के नीचे सोता है, तो इसका मतलब ये जुल्म नहीं करता है। हमारे हुक्मरानों को देखो, हमारे बादशाहों को देखो, 3-3 हजार पहरेदारों के बीच में रहते हैं। ये कहता है क्योंकि वो जुल्म करते हैं, वो जुल्म करते हैं। जो जितना ज्यादा जालिम उतना ज्यादा पहरेदार उसके लिए, उतना ज्यादा सुकून से खाली उसकी जिंदगी, सुकून से खाली उसकी नींदें। जुल्म ना करो, जुल्म ना करो, बुरा अल्लाह ताला। ख्याल रखो, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाओ, जिम्मेदारियों से भागो नहीं। अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदार बनाया है, घर का, औलाद का, पूरी करो, डट के पूरी करो उसकी जिम्मेदारी को। सुबह भी सोए, दोपहर में सोए, शाम में सोए, किधर तो घूमे, किधर तो फिरे, नहीं चलेगा मेरी बहन, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेरी जिम्मेदारी तेरा घर, तेरा शौहर, तेरा ससुराल, तेरी औलाद, तेरा खानदान है। भाग भाग के बार बार मैके आना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैके बार बार आने की क्या जरूरत है? मेरे को एक बात बता दो, लड़की को बाजू भी घर होगा ना,
डिस्टर्ब हो जाएगा तेरा घर, तेरा खानदान, तेरा शोर, तेरी औलाद डिस्टर्ब हो रही है, भाग भाग के मायके आते रहती है। आओ, बेशक मायके के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। हाँ, औरतों की महफिल है ना, बताना बहुत जरूरी है औरतों को ये मसाइल, बहुत जरूरी है। पूछेगा रब्बुल आलमीन, तेरी जिम्मेदारी थी तेरा शौहर, तेरे बच्चे, तेरा घर, तेरा खानदान, बचपन बच्चों का भाग भाग के मायके जाना, घंटों गीबत करते बैठे रहना, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मायके जाना थोड़ा कम कर दो, अपना घर देखो। बुरा लगता है बुरा मानो, जरूर बुरा मानो, ज्यादा बुरा लगा आके दो मार भी दो, हमको मार खा लेंगे, लेकिन तुमको सुधार के रहेंगे, उस वक्त तक बोलेंगे जब तक कि हमारी कौम सुधर नहीं जाती। बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, है ना। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को चक्कर लगाने निकले मदीना की गलियों में। देखा एक औरत चूल्हा जलाई है, हांडी रखी है, हांडी में पानी डाली है, उसमें 2-4 पत्थर हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, माँ खाना कब बनेगा, माँ खाना कब बनेगा। और माँ तसल्ली देती है, बेटा बनेगा, खा लेना। और रोते रोते पहले एक सो गया, फिर दूसरा सो गया, है ना, तीसरा सो गया। हजरत उमर झांक के देखते हैं हंडिया में ऐसा क्या पक रहा है आंगन में। बाउंड्री वॉल तो होती नहीं थी, गेट तो होता नहीं था। देखा पानी में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। पूछा खाना क्यों नहीं देती हो बच्चों को? कहा घर में कुछ नहीं है, बच्चे रोते रोते सो जाएंगे, कुछ है ही नहीं पकाने के लिए। उमर दहल गए, बैतुल माल आए, अनाज का बोरा उठाया, गुलाम आगे बढ़ता है और कहता है मेरे आका, गुलाम हाजिर है, अनाज का थैला मैं उठा लूं। उमर ने कहा जब अल्लाह मेरी जिम्मेदारियों के बोझ के बारे में पूछेगा, क्या तू मेरा बोझ उठाएगा गुनाहों का? क्या रब्बुल आलमीन के सामने, कयामत के सामने मेरा बोझ उठा पाएगा? हट, मेरा बोझ मुझे उठाने दे। गए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, बोरी थैला अनाज का घर तक पहुंचाया, माफी मांगी, मेरी रियाया, मैं जिम्मेदार था इसका, मैं जिम्मेदार था इसका। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत को नहलाया जा रहा था, लगता नहीं था ये किसी खलीफा की मैयत है, ये किसी खलीफा की पीठ है। अल्लाह की कसम वो मजदूर की पीठ थी, थैले ढोते 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 ढोते। जिसकी पीठ थैले ढोने में गुजर गई, सोचो ये मुसलमानों का खलीफा। जहन्नम की आयतों पे पहुंचते रोते रोते बेहोश हो जाते, ये हमारा मुसलमानों का खलीफा। मुसलमानों हम कौन सी बेफिक्री की जिंदगी में जी रहे हैं बता दो। ना जिम्मेदारियों का बोझ है, ना यतीमों का, ना मिस्कीनों का, ना बेवाओं का। आगे अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बेवाओं का जिक्र किया, यतीमों का जिक्र किया। याद रखो हमारा मजहब वो मजहब है जो सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा लाचार, सबसे ज्यादा मजबूर, सबसे पहला हक भी उन्हीं का होगा। ये जहन्नम है उनके लिए। वला तहाज़्ज़ून अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीन के खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ता था इनका। बताऊं, ईद का दिन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किए हुए, नहा धो के बेहतरीन कपड़े पहने हुए, हसन हुसैन का हाथ थामे हुए ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में देखा एक यतीम बच्चा लोट लोट के मिट्टी में भीख मांग रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज ईद का दिन मिट्टी में लौट रहा है, नहा धो के ईदगाह आओ ना। उसने कहा, मोहम्मद, ईद उसकी जिसकी मां जिंदा है,
ए मोहम्मद, ईद उसकी जिसका बाप जिंदा है, जिसका माँ हो न जिसका बाप हो, उसकी कैसी ईद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीमी का दुख क्या होता है मेरे से भला ज्यादा कौन जानता होगा। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को यतीम पैदा किया, यतीम। ये पूरी उम्मत के लिए पैगाम है, यतीम का मकाम देखना है। अपने आखिरी नबी को देखो, आखिरी नबी को देखो। 1 साल बाद, 2-4 साल के बाद बाप की मौत होती, क्यों आखिर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को यतीम पैदा किया। ये बेवा, ये यतीम, ये मिस्कीन, इनकी जिम्मेदारियों का बोझ है हमारे कांधे पर। मेरी बहनों, जैसे कचरा फेंकते हो ना, माल को साफ करो, अपने खानदान के यतीमों को देखो, खानदान के बेवाओं को देखो, अपने माल को साफ करो। ये यतीम, ये बेवा दामन पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे जन्नत के अंदर। क्या जवाब होगा हमारे पास? माल 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 माल, कमाते कमाते, जोड़ते जोड़ते जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। न जहन्नम से डर पैदा हो रहा है, न यतीम मिस्कीन की तरफ दिल बढ़ता है, न अल्लाह के दीन की तरफ दिल नरम होता है। इतने पत्थर दिल मेरी बहनों हम कैसे हो गए, बता दो। इतनी अल्लाह के कलाम से दूरी कैसे हो गई, कैसे इतने पत्थर दिल हो सकता है एक मुसलमान। वो यतीम बच्चे हमारी बच्चे हैं, हमारी कौम है, वो हमारे मुल्क का सासा है, वो हमारे कौम की दौलत है, वो हमारे कौम की जायदादें हैं। ये मैं नहीं, ये पूरा 30वां पारा आपसे मांग रहा है, यतीमों को स्टैंड करो। देखो जंगें चल रही हैं, कहीं माँ बाप औलाद के लिए तरस रहे, तो कहीं बच्चे माँ बाप के लिए तरस रहे। अगर आपके घर में दस्तरखान बिछा हुआ है और दस्तरखान पे माँ भी है, बाप भी है, बच्चे भी हैं, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह हमारे बच्चों के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे घर के छत के नीचे ईद दे रहा है हमको। कितनों के घर उजड़ गए, कितनों के माँ बाप उजड़ गए, कितनों की औलादें बलि चढ़ गई, कुर्बानियां दे दी गई औलादों की। आज एक घर, एक छत के नीचे हम अपनी औलाद के साथ, अपने माँ बाप के साथ, इससे बड़ी जन्नत बोलो हमारे लिए क्या है। हमारे रिश्ते हमारे करीब है। माल के लिए किसी के लिए नीयत बुरी ना करो। बहन बहन, भाई भाई, बहन भाई, लड़ते लड़ते सारी जिंदगी लड़ते, आखिरी में मिलता क्या? 10 बाई 10 का एक कमरा, 10 बाई 10 के एक कमरे के वास्ते एक भाई ने दूसरे भाई को जिंदगी बर्बाद नहीं की। जमीन का छोटा सा टुकड़ा हमारे खून के रिश्तों के बीच कब से आ गया मेरी बहनों। खून का रिश्ता इतना कच्चा कैसे हो सकता है? खून हमारा इतना कमजोर कैसा हो सकता? जमीन का एक टुकड़े ने हमारी खून की मोहब्बतों को खत्म कर दिया, हमारे इस्लाम की मोहब्बतों को खत्म कर दिया। ना हम खून के रिश्तों के रहे, ना अल्लाह के रहे, ना अल्लाह के रसूल के रहे, ना दुनिया के रहे, ना आखिरत के रहे। ये कौन सी जिंदगी है मेरी बहनों जो हम गुजार रहे हैं? आज घर पे जाओ, सुकून से अपनी जिंदगियों का जायजा लो। एक बार तसव्वुर करो वो खाने का जिसका एक टुकड़ा जमीन के सारे खानों को बदबूदार कर देगा, जिसका एक डोल पानी पूरी दुनिया को बदबूदार कर देगी, जिसका एक कोड़े का मार उठ नहीं सकोगे। जहन्नम एक दाढ़ जहन्नमी का उहुद पहाड़ के बराबर। तसव्वुर तो करो वो कैसी सजाएं होंगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बयान कर रहा है। अल्लाह हर सजा से अल्लाह हमको माफ फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आगे 1 मिनट के अंदर अंदर बड़ा अहम वाकया है, मैं बता दूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना जादू हुआ था। हमारा सबक शुरू हुआ था जादू से, सूरह बकरा के। आज कुरान की तफसीर भी खत्म होती है जादू ही पे। अगर किसी को ये लगता है
کہ نیک انسانوں پہ جادو نہیں ہوتا ہے تو یہ واقعہ ان کے لیے ہے. سب پہ جادو ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی. جادو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا. آپ سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر؟ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا تھا. کنگھی کے بال لیا، بالوں سمیت کنگھی، زروان ایک کنواں تھا، کنویں کے نیچے اس نے کنگھی دبا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زروان کا کنواں دکھایا گیا، یہاں پہ ہے. طبیعت ہمیشہ خراب رہنے لگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے لگتا تھا رسیوں سے کسی نے پورے جسم کو باندھ دیا ہے، پورے جسم کو باندھ دیا ہے، ایسا لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنگھی، وہ بال منگواتے ہیں، کنگھی سے بال نکالا تو ایسے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانو کسی نے رسیاں کھول کے آزاد کر دیا ہو، ایسا کھڑے ہو گئے. نیک لوگوں پہ بھی جادو ہوتا ہے. کینسر کی بیماری جادو کی بیماری ہے، یاد رکھو، کبھی نہ بھولو یہ بات، کبھی نہ بھولو. اگر گھر کے اندر کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی کینسر پیشنٹ ہے، مر رہا ہے، تو بھی جادو کا علاج کروانا، جلدی جلدی کرواؤ. جاتے جاتے اپنی بیماری نسل در نسل شفٹ کر کے جائے گا. کینسر کا مریض مرنے کے بعد بھی اس کا جادو ختم نہیں ہوتا ہے، پیچھے والوں کو دے کے جاتا. دھیان سے سنو، ٹائم بہت کم ہے، میں نے تو تفصیل آپ کو بتاتی. جادو کی کون کون سی بیماریاں؟ کینسر نمبر 1 پہ. ہر کینسر کا مریض پہلے اس کو جادو ہوا تھا، اس نے جادو کا علاج نہیں کرایا، اس واسطے اس کو کینسر ہوتا ہے. اب اگر جادو کا علاج نہیں کروایا، ڈاکٹرز تو جواب دیں گے ہی یہ اچھا ہوگا نہیں. کینسر کا مریض اچھا ہوتا نہیں ہے پہلے تو، 1 سال کے بعد صحیح، 2 سال کے بعد صحیح، 4 سال کے بعد صحیح مر ہی جاتا ہے. کینسر ڈبل واپس آتا ہے. مرتے تو سب ہیں، خیر ہے نا، مریں گے تو ہم بھی، کینسر ہو نہ ہو، لیکن بتا رہی ہوں. لیکن جلدی جادو کا علاج کرو، پیچھے والوں کو نہیں لگے گا، بس اس واسطے کرانا ہے. نہیں تو اب مر رہے نا، اب کیا لے کے پھریں گے. ایسا سوچے تو گئے کام سے، ایسا نہیں سوچنا. دوسرا ایک بیماری ہے مرگی کے دورے. مرگی کے دورے اگر کسی کو پڑتے ہیں، 90% یہ جناتی بیماری ہے. اس کا دوا میں کوئی علاج نہیں ہے، دعا میں علاج ہے، دعا میں علاج ہے. مرگی کا دورہ، دعا میں اس کا علاج آپ کو ملے گا. سرفن ایک بیماری ہوتی ہے، سانپ کے جیسا ایسا چھاپے پڑتے ہیں پورے بدن میں، یہ بھی شیطانی بیماری ہے، جناتی بیماری ہے. اس کا علاج بھی آپ کو دم سے کروانا پڑے گا، دعا سے کروانا پڑے گا، میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے. سرفن کی بیماری کا یاد رکھنا. ہاں سرفن کہتے ہیں اس کو اردو میں. مرگی کی بیماری، سرفن کی بیماری، کینسر کی بیماری، اور جتنے اسکن پرابلمز ہیں لڑکیوں کو، خاص لڑکیاں سن لے، چہرے پہ دانے نکلتے، جلد کی بیماری، برس کی بیماری، چہرہ عجیب عجیب ہو جاتا، سارے اسکن پرابلم، سارے چمڑے کی بیماریاں یہ جناتی بیماریاں ہیں. اس کے لیے دعا کروانا ضروری ہے، دعا ضروری ہے. اسی لیے ایک سے ایک مہنگے سے مہنگے اسکن کیئر کے پاس جاتے ہیں، حل ہی نہیں ہوتا ہے. کہاں سے حل ہوگا؟ دعا کے پانی سے منہ دھو لے میری بچی، آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا. نظر سے ہوتا ہے، جناتی بیماریاں ہیں، دعائیں بتائی گئی ہیں صبح و شام کی. ہر جادو، ہر جن سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، بس بات ختم. سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ لو. جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، سب کا علاج ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ ناس اور سورہ فلق اتار کے اپنے نبی کے جادو کا علاج کروایا. یہ 2 سورتیں نازل ہی ہوئی ہیں
जादू और शैतान के इलाज के लिए। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये पढ़ के फूक लो, बात खत्म। किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी पलीते की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। माफ करना, मैं जरा ज्यादा ही ले ली वक्त आपका। अल्लाह हर बीमार को सेहत अता फरमा। अल्लाह ताला अमीन और अकील को सेहत अता फरमा। अल्लाह ताला हम सब को सेहत अता फरमा। हमजा के लिए सेहत अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे कारोबार में तरक्की और बरकत अता फरमा। हमारी खुशियों में अल्लाह बरकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल बहुत गड़बड़ हरगिज नहीं करना। मैं पहले ही 5 मिनट टाइम लेके कल के बारे में आपको बोली हूँ। जो रोजेदार हैं या ऑनलाइन है वो भी सुकून से बैठो। जो यहाँ पे आना चाहते हैं खुशामदीद आपके लिए। हम मना नहीं करते आपको आने से। हमारे घर के दरवाजे, हमारे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सांस तक आप आओ हमारे पास। हम जो कर सकते वो करेंगे, लेकिन जरा डिसिप्लिन को कायम रखो। बच्चे वाले इधर मत आओ, बच्चे वाले उधर भी मत जाओ। बच्चे जरा भी बच्चों को मत छोड़ो निशाता पा, कोई बच्चे को मत छोड़ो। सीधा टेरिस पे बच्चे अगर लेके आ रहे आप तो बैठो। बच्चों को लेके मना नहीं है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बच्चे खाएंगे पिएंगे, क्या क्या तो करेंगे, सोएंगे। आराम से ऊपर बैठो, आराम से नीचे बैठो, आराम से। पूरी गली वाले बहुत कोऑपरेट है हमारे, पूरा गली साथ देती है हमारा। कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई पड़ोसी हमारा आपको कुछ नहीं बोलेगा। सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सारे लोग साथ देते हैं, पूरा मोहल्ला आपका साथ देता है। कोई बोला आपको आज तक किसी ने कुछ बोला? यहाँ से वहां तक रोड बंद कर देते। जब मनियारों के घर में तो वहां से वहां तक बंद करते थे, सागर में तो वहां भी बंद करते थे। उस दिन रोड बंद कर देते हैं, मोहल्ला बंद कर देते, कोई कुछ नहीं बोलता आपको। बीजापुर वाले इसीलिए तो पसंद है जी हमको, कोई कुछ नहीं बोलता। पूरा मोहल्ला हमेशा आपका साथ दिया है। मनियारों के घर से लेके सागर से लेके सकाफ रोजे तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जरा आप भी डिसिप्लिन में रहो। चप्पल अपनी गोद में रखो, चप्पल के लिए कैरी बैग लाओ। आराम से जहां जगह मिली वहां पे बैठो। हम इंशाअल्लाह सुकून से दुआ मांगेंगे। रहमतों का महीना है, ऐ रब हम झोली फैला के तेरे दरबार में आएंगे। किसी का एक आंसू, किसी की एक आमीन, शायद अल्लाह ताला उसको कबूल करे। हाँ, निशात आपा बोल रहे कैरी बैग वापस भी लेके जाना, यहाँ पे मत फेंक के जाओ, पूरा मोहल्ला गंदा करके मत जाओ। बड़े साफ सुथरे लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ माशाअल्लाह। कैरी बैग लो, चप्पल डालो, गोद में रखो, फिर कैरी बैग भी लेके जाओ, चप्पल भी पहन के जाओ। पता नहीं अगले साल तक हम रहे ना रहे, तुम तो रहोगे, हम रहे ना रहे। आखिरी रमजान समझ के दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा जनाजा है, ये हमारी खूबसूरत यादें हैं। आप गुजरेंगे यहाँ से कभी तो याद करेंगे, इसमें यहाँ पे जीनत आपा रहते थे, दुआ करते थे, अल्लाह उनको मगफिरत दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, ऐसी हमारी यादें हैं, हमारा जनाजा है। ये गली से गुजरोगे भी ना, हमारी यादें आपको आएंगी। मनियारों के पास से गुजरते आज भी लोग कहते यहाँ इज्तिमा होता था, यहाँ हम बैठ के दुआएं मांगते थे। कभी यहाँ पे हमारी बड़ी यादें हैं, वो रोड से, ये रोड से, ये रोड से। अल्लाह हमारे पड़ोसियों को भी अच्छा रखे। कोई शिकायत नहीं करेगा आपसे, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। सुकून से आओ, सुकून से बैठो, सुकून से जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं, कोई हलचल नहीं, सुकून से, सुकून से। ठीक है, अगर हमारे वॉलेंटियर्स बोले यहाँ पे जगह भर गई है, आप इधर बैठो, बगैर बुरा माने हुए, नहीं 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 हमको बोले कैसा। बीजापुर के तो नहीं बोलते ऐसा, ये अतराफ के आते ना वो बोलते हैं। हाँ सच बोल रही मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात कि बीजापुर वालों के जितना ढंग मैंने कहीं नहीं देखा। आराम से सुनती, 20 साल का भी पूछो वो बोलेंगी,
बराबर सुनती, बराबर याद रखती हैं। ये दूसरे आते ना बड़ा धूम मचाते, लड़ो नहीं, रोजा है, लड़ना नहीं है, बहस नहीं करना, झिड़की नहीं देना, मेरी बहन तू आगे जा, मैं पीछे रहती। बोलो, कोई वैसे भी नहीं लड़ती, कभी नहीं हुई लड़ाई हमारी, लेकिन आज भी मत लड़ो, कोई नहीं। ये जो दूसरी आती हैं, नई नई औरतें आती हैं, उनको नहीं मालूम बेचारों को। मैंने देखा कल मस्जिद में एक औरत दुपट्टा हाथ में पकड़ी है, बाल ऐसे तो, और मस्जिद में पागलों के जैसे फिर रही है। मैंने कहा अल्लाह तुझे हिदायत दे बहन, कभी नए नए मस्जिद आते, इनको नहीं मालूम रहता मस्जिद में आने का एहतराम क्या है, पहले कौन सा पैर रखना, कौन सी दुआ पढ़ना, आ रहे तो कैसा हाथ में दुपट्टा ऐसे हिलाते आ रही है। मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है, हम अल्लाह के लिए दुआ करने के लिए आ रहे। आजिज़ी हो हमारे अंदर, इनके सारी, हम सब रोजेदार हैं, मोमिना हैं, हम गड़बड़ कैसे कर सकते, हम शोर कैसे मचा सकते, हम किसी को तकलीफ कैसे दे सकते। सुकून से इंशाअल्लाह, हमारा कल का बड़ा इंतजार है, कल के दिन का। परसों तो समझ में नहीं आता दिन कैसे जाएगा। अल्लाह बस हमसे कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।